Hello to my all dear students. My name is Anand and I welcomes all the aspirant, all the candidates, all my dear friends who are going to appear for the SBI PO Mains 2025 at the Brainipedia Skills YouTube channel, right? Again guys, you know about this. अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, so we have started recording the sessions जिसमें हम आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाए किसी भी वे में like again we can contribute in our education society, like we can contribute towards your success by recording these videos. हमने एक सीरीज स्टार्ट की है लेक्चर्स की, मेमोरी बेस्ड सेशन से स्टार्ट किए हैं। प्रीवियस ईयर्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी सीरीज स्टार्ट की है। सो अगेन इफ यूर गाइज, if you are watching this video for a very first time and if you are appearing for the SBI PO Mains Exam 2025, अगर अगले बार भी अपीयर करने वाले हो, सो फॉर योर प्रैक्टिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशंस एंड प्लीज डू वॉच द सेशंस, राइट। हर एक सीरीज में, हर एक वीडियो में आई एम जस्ट टेकिंग वन ऑफ द DI सेट and we are discussing that particular DI set in the session, right? So without wasting any time guys, just I am going to share my screen to all of you and we are going to start the session, right? Just give me a minute. I will share my screen to all of you with the all of you. Just a second, all of you. Fine. Everything looks fine from my side. Right, everyone. Hope so. I have just shared my screen with you all, and I think as I can see on my other device, it is visible clearly, and I am audible too. So I have confirmed the things, and I don't think so कि like voice या फिर like screen sharing में कोई problem है. So again, I'm welcoming you all my students who are watching this video. I am recording this session at 10 a.m. right? I forgot to mention here. तो बहुत अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर माई साइड। वेरी गुड मॉर्निंग अगर आप बहुत सुबह के टाइम देख रहे हो इस वीडियो को। एंड प्लीज डू वॉच द वीडियोस ना, प्रीवियस वीडियोस भी आप जाके देखो। हमने हर एक लाइक मेमोरी बेस्ड को जो क्वेश्चंस होते हैं ना 21 से उठाना स्टार्ट किया है। एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, वी आर गोइंग टू कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वांट, राइट। क्वांट के वो लेते हैं पहले, देन if you are going to have like sufficient time, we are going to cover the reasoning part as well, right? Again, you guys know about me. My name is Anand and basically I teach quant for SSC banking and railways exam. रीजनिंग भी मैं पढ़ाता हूँ। अगेन अभी क्वांट की क्लास चल रही है, देन आई विल गोइंग टू कवर द क्वांट पार्ट ओनली, राइट एवरीवन। टॉपिक हम जो कवर कर रहे हैं एसबीआई पीओ मेंस मेंस की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड सीरीज क्वेश्चंस कह लो आप, DI के सेट हम कवर कर रहे हैं, राइट। डाटा इंटरप्रिटेशन, right everyone. So without wasting any time, I will going to show you the very first question of the series. And again now we are trying to make the series of videos very short. आपके लिए बहुत short videos लेके आ रहे हैं, एक set one video, right? Again now if you're going to watch these videos now, you're going to find very much interesting, right? Again I'm just telling you ना, एक वीडियो में एक हम सेट उठा रहे हैं और उसको हम डिटेल वे में हम उसको पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें उस DI में हो सकती थी and what will be the shortcut approach of doing that particular DI or solving that particular DI, right? चलिए guys, so without wasting any time, let's move to the very first question, all of you. First, let me first erase this all. So again हमारा एक ही मुहिम है आप लोगों के लिए। Again if you guys are new to the session, हमारे पास एक ही मुहिम हम लेके चल रहे हैं कि इस बार होगा पोस्ट पे कब्जा, वस्तु रख जज्बा, राइट। दिस इज द कोर मोटो। हमारे टैगलाइन पे भी आप देख सकते हो, इसी मोटो के साथ हम लोग जा रहे हैं। अगेन आई एम टोल्ड यू ना गाइस, राइट, हमारे तरफ से एक छोटी सी मुहिम ये है कि हम आपके प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत भी कंट्रीब्यूशन अगर हम कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू बी वेरी मच ग्रेटफुल कि हमने थोड़ी बहुत आपकी हेल्प की आपके प्रिपरेशंस में, राइट। नाउ लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, इट सेज, जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूं या तो फिर कैंसिल ही कर देता हूं, ठीक, डन। गिवन बिलो द डाटा
अगर विजिबल नहीं है बेटा, मैं एक बार एक्चुअली ना आई वाज वाचिंग माय रिकॉर्डेड सेशंस ना, तो मुझे थोड़ा ये दिखा कि जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, एक्चुअली मैं एडजस्ट कर देता हूँ, बट आई हैव फाउंड कि वो पार्ट, थोड़ा सा पार्ट जो ना ऊपर वाला पार्ट, वो दिखता नहीं है। सो अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग द क्वेश्चन, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा अगेन ना। देखो, हम कोई ना यहाँ पे फैंसी फैंसी टाइप की कंपटीशन नहीं चला रहे हैं कि हमें हमें अच्छा दिखना है, अच्छा दिखाना है। वी आर हेयर टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट? हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और दिस इज रिगरस अप्रोच ना विल गोइंग टू बी मेक अस सेलेक्टेड ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट? सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक आवर सेल्फ अगेन उतने कंफर्टेबल जोन में आपको नहीं आना है जिससे कि पूरा ही नुकसान हो जाए, राइट? सो अगेन ना थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करोगे, अगेन इट्स अ लाइफ एंड वी कैन एडजस्ट थिंग्स एंड लाइफ गोज ऑन, राइट? So it says, given below the data about three employees of a call center named, यहाँ पे है employees of a call center named क्या है, जिंटोका. In the given table, data about call received by them, call selected for further lead एंड कॉल फाइनली रिसीव्ड इज गिवन. अगेन ना देखो, ये डाटा को पहले समझने में ही आपको थोड़ा टाइम लगेगा. रीड द डाटा वेरी केयरफुली, राइट? डाटा एनालिसिस में, डीआई में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई ऑलवेज शेयर टू माई विद माई स्टूडेंट्स, रीड द डाटा केयरफुली. 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग जाए बट रीड करना. लेकिन वंस यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पेन एंड पेपर ना, तब वहां पे आपके पास बैकवर्ड होने का कोई चांस नहीं रहता है. तब आपको उसके लिए जाना ही है, राइट? तो रीड द डाटा केयरफुली. क्या कह रहा है, एक बार नहीं समझ आ रही है, दूसरी बार आप रीड करो, देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि डाटा में कहा गया क्या गया, ठीक है? एक कॉल सेंटर के बारे में बताया गया है जिसके 3 एम्प्लॉयज हैं, ए बी सी, ठीक है? और इनका जो आप टेबल देख रहे हो ना, ये टेबल है, मैं इसको थोड़ा और बाइफरकेट कर देता हूं. ये टेबल कुछ इस तरीके से है आपके पास, ठीक है? इस तरीके से है, ठीक है जी? हम्म. या टेबल कुछ आपकी इस तरीके से है, राइट? देखो यहाँ पे क्या है, इनिशियल कॉल्स परसेंटेज आउट ऑफ द टोटल कॉल. आपको मैं बहुत ही सरल भाषा में बताता हूं. मान लो ए के लिए 100% कॉल था, राइट? ए के लिए 100%, तो इनिशियली तो 100% टोटल कॉल होगा, राइट? कुछ नंबर ऑफ कॉल्स होंगे, उसमें से इनिशियल कॉल्स उसने किए होंगे, दैट इज 40%, तो दैट इज 40%, ठीक है जी? अब इस 40% में से लीड कॉल्स आउट ऑफ द इनिशियल कॉल्स, राइट? अब इनिशियल कॉल्स कितने हैं, 40% है, उसमें से आपकी जो लीड कॉल्स कितनी बनी है, वो बनी है 80%. सो 80% इट मींस दैट इज गोइंग टू बी 32%, राइट? अब इस 32% में जो फाइनल रिसीव्ड कॉल्स है आउट ऑफ द लीड कॉल्स विच इज गोइंग टू बी 90%. तो अब ये 90% जो होगा ये 32 का होगा, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट इन द क्वेश्चन. अगर एक बार ये समझ गए, अगेन 3 क्वेश्चन हैं बेस्ड ऑन दैट, राइट? हम बहुत इजीली कर लेंगे, बट पहले डाटा को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट गाइज? होप सो यू guys are getting ना. अगेन ना, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस सेशन, आई डोंट नो कि वेदर इन विच ऑफ द पार्ट यू हैव डाउट. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको कोई डाउट है देन प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. वी डेफिनेटली, आवर टीम विल गोइंग टू रीच यू एज सून एज पॉसिबल, राइट? चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे. Just a second. Let me erase all these things. Then we going to start things again. Right. क्या है यहाँ पे आपके पास, अगेन देखना. जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इनिशियल कॉल से मान लो कि उस कॉल सेंटर के लिए कॉल्स हैं, मतलब 100 एक्स और वाई, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे देखना एक्स और वाई गिवन है जो कि हमें फाइंड आउट करना है. मान लेते हैं 1000 ए है द नंबर ऑफ कॉल्स. मान लो इनिशियल नंबर ऑफ कॉल्स जो हैं वो 1000 ए हैं. क्योंकि देखो ना, पता है क्या मैंने 1000 ए क्यों लिया, कि जब यहाँ पे 32 आया था ना, जब हमने 100 लिया था, तो यहाँ पे 32 का 90% कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं है, बट डेसिमल्स में आएगा. सो रेदर देन टेकिंग द वैल्यू इन डेसिमल्स, हम क्या करते हैं, 1000 ले लेते हैं. दैट विल मेक्स आवर कैलकुलेशन इजियर. चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ए की बात करें तो ए के लिए कितना हो जाएगा, 400 ए इज द नंबर ऑफ कॉल्स, राइट? इनिशियल कॉल्स हो जाएगा ए के लिए. देन बी के लिए कितना हो जाएगा, 300 ए. और सी के लिए कितना हो जाएगा, 300 ए. ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, ये मैं आपको ना बाइफरकेट कर ही देता हूं
जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। मतलब मान लो तीनों के लिए इनिशियल कॉल्स हमने लिया है 1000 ए, ठीक है। फिर आपके पास है लीड कॉल्स। लीड कॉल्स अब ए के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज 80%। 80% का मतलब क्या है, 320 ए, राइट, यही होगा ना, 320 ए। हाँ 320 ए। अगर हम बी के लिए लेके चलें तो बी की वैल्यू एक्स है ना, ये हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर हम सी के लिए लेके चलें, सी के लिए लेके चले तो सी के लिए 88%। 88% का मतलब है 270, 270 और 270, 270 यहाँ से 90%, 270 हो जाएगा। और उसमें से माइनस कर दो कितना, कितना, 60 माइनस करोगे, हम्म, हाँ 270, 270, 88% है ना। अच्छा एक काम करते हैं ना, इतना क्यों लोड लेना यार। ठीक है जी, क्या करते हैं, 88% है ना, 80% इस 240, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ। 240 है उतना, और ये हो जाएगा कितना, 3 और 24, ये हो जाएगा 24, दैट इज गोइंग टू बी 264। कुछ टाइम ना क्या होता है कि कैलकुलेशन सडनली आपके माइंड में क्लिक नहीं करता, जहां पे क्लिक ना करे, रेदर देन डूइंग मिस्टेक आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इतनी क्या ही जल्दीबाजी है, ठीक है। 264 ए, ये हो जाएगा इसके लिए लीड कॉल्स, राइट, लीड कॉल्स आउट ऑफ द इनिशियल कॉल्स, राइट। अब यहाँ पे फिर ये नहीं दिया हुआ है, राइट, ये गिवन नहीं है आपके पास, y% गिवन है। तो चलो ये करते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अब जो लीड कॉल्स है ना, लीड कॉल्स कितने हैं, 320 है ए के केस में। उसमें से 90% जो ए ने कन्वर्ट किया है, तो ए ने जो कन्वर्ट किया है वो कितने कॉल्स कन्वर्ट किए होंगे, इसका 90% विच इज गोइंग टू बी 18, 288, 288 नंबर ऑफ कॉल्स इसने फाइनल कॉल रिसीव्ड है, ठीक है, ए के केस में। अगेन यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे गिवन नहीं है, प्लस सी का कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सी के केस में क्या होगा, वाई अपॉन 100 इंटू 264 ए होगा बेटा, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 264 ay अपॉन 100, ये होगा किसके केस में, अपने y के केस में, राइट, यही होगा ना, क्योंकि हमारे पास तो परसेंटेज है नहीं। चलो यहाँ पे बी के केस में देखते हैं, बी के केस में क्या था, बी के केस में था लीड कॉल्स x% है, तो x% के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्स अपॉन, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, इसके टॉप पे लिख देता हूँ, ठीक है। x% का मतलब x अपॉन 100 इंटू 300 ए, विच इज गोइंग टू बी 300 ए अपॉन, सॉरी कितना, 300 ax अपॉन 100, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, जीरो जीरो कैंसिल कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 3, कितना, एक्स और ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना, ये कितने कितना आ गया, 3 xa, ठीक है। अब इसका निकालना है 80%, तो 80% के लिए क्या करोगे, 80% के लिए कर लो, 80% की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, राइट, तो 4/5 इंटू इंटू 3 xa, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 12 xa अपॉन 5, ठीक है जी। तो ये आ गई आपकी वैल्यूज, ये यहां से आ गई, ये यहां से आ गई। तो ये है आपके, इस चार्ट को अगर हमें कंप्लीट करना था, तो दिस इज हाउ वी कैन सिंप्लीफाई द वैल्यूज बाय यूजिंग 100, और सॉरी 1000 ए लेके हमने सिंप्लीफाई कर लिया, राइट गाइज। if you have any doubt in any of the calculation, please do let us know. Again, I'm just telling you na, we are recording the session, so we don't know at what point of time you have doubt. So again, just mark it, just tell me कि कहाँ पे डाउट है, our team will going to reach you, I will going to reach you personally, and I will tell you कि कहाँ पे क्या चीजें कैसे कैसे चली हैं, वो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, राइट। नाउ based on that, just read the very first question, guys. First question, all of you. I will going to erase few of the things on this particular part, right? Let me erase the things first of all, right? ठीक है जी, तो वो टेबल आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, राइट एवरीवन। तो आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि, फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ,
टोटल नंबर ऑफ इनिशियल कॉल्स इन द कंपनी इज 24 24,000 है, 24,000, ठीक है। इनिशियल नंबर ऑफ कॉल्स, इनिशियल नंबर ऑफ कॉल्स का मतलब क्या, दिस वाज द इनिशियल नंबर ऑफ कॉल्स ना बेटा, हमने 1000 एक नंबर लिया था, वी हैव टेकन 1000 एज ए नंबर, राइट, उससे हमने सारे डाटा को कैलकुलेट किया। तो इनिशियल कॉल्स ए के लिए ये था, बी के लिए ये था, और सी के लिए ये था, राइट। अगेन जस्ट वी हैव सॉल्व्ड एंड अगेन ना we have some limited space, in that only we have to do our calculations. So I just request you all, अगर आप वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो, जस्ट गो इन द प्रीवियस स्लाइड एंड यू कैन सी कि क्या क्या डाटा था, राइट। अगेन आई हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, गो टू द प्रीवियस स्लाइड एंड do see the data first and then come back to the question, right? So this is what given in the question ना, ABC, और हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं। चलो आगे देखिए, अगर हम, तो एबीसी ये तीनों का सम कितना दिया हुआ है, अगेन यही है ना, इनिशियल कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है, दैट इज 24,000। तो यहां से हम ए फाइंड कर सकते हैं, ए का मतलब कितना, अगर ए हम फाइंड करें तो ए इज गोइंग टू बी हाउ मच, कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 400 प्लस 700 एंड 1000, तो ये हो जाएगा 1000, ए इक्वल्स टू 24,000, और ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 24, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 24 है बेटा, तो हर एक जगह पे आप रख लो और रख के कैलकुलेट कर लो। अगर इसको मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो दैट इज गोइंग टू बी, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ये कितना होगा, 8,000 और 8 और 1600, 8,000 और 1600, 96, ये 96 हो जाएगा, ठीक है। 96 एंड सो आप सारे कैलकुलेशंस को कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3,000 है ना, 3,000 इंटू 24, सॉरी 300 इंटू 24, दैट इज गोइंग टू बी 6,000, 6,000 और 1,200 यानी 7,200, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 24 और 300, 24 300, अगेन ये हो जाएगा आपका 7,200, राइट। सो एंड सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज, ये आपकी ए की वैल्यू यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया, राइट। चलो बाकी आगे देखें, आगे क्या क्या है आपके पास, ठीक है। आपने ये फाइंड कर लिया है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या आपसे पूछा गया था। कहा क्या गया है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉल्स नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी सी इज नॉट रिसीव्ड है। ध्यान रखना, नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या है, कितने कॉल्स किए गए और कितने कॉल्स फाइनली फाइनली उनका वो मतलब फाइनली वो कन्वर्ट हुए कॉल्स, उनका डिफरेंस विल बी द नॉट रिसीव्ड। ध्यान रखना ये चीज, लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड बाय कंपनी ए, कंपनी ए में जितने कॉल्स रिसीव्ड हुए हैं उनका टोटल है। देखो यहां तक आपका डाटा आ गया है बेटा। अगेन आई एम जस्ट एडिंग वन मोर स्लाइड जस्ट टू डू द कैलकुलेशन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थोड़ा बहुत लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, सो लेट मी ऐड वन पर्टिकुलर स्लाइड इन दिस एंड देन वी कैन डू द क्वेश्चन, राइट। जस्ट ए सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, राइट। हो जाएगा, इसमें ही हो जाएगा, ट्राई करें क्या, चलो इसमें ट्राई करते हैं, इसी वाले पार्ट में ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, क्योंकि यहाँ से डाटा फिर हमें उधर के साइड लेना ही पड़ेगा और दूसरे स्लाइड पे जाने के लिए हमें चीजें अरेंज करनी ही पड़ेंगी। तो रेदर देन डूइंग दिस ना, हम इसी पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है आपके पास, जेड गिवन है, ठीक है। अच्छा, आपके पास आपने ये जो क्या है आपके पास, हमने ए कैलकुलेट कर लिया है, फिर हमारे पास क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, कॉल नॉट रिसीव्ड बाय सी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आया था आपके पास, ये आया है कितना है, 300 ए इज द नंबर ऑफ कॉल्स। अगेन गाइस थोड़ा सा ना मैनेज करना, स्पेस से रिलेटेड इशू है हमारे पास, ठीक है। अगेन ना अगर मैं अरेंज कर दूंगा तो थोड़ा हमें क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी। आई नो द डाटा, आई नो एग्जैक्टली वेयर लाइक व्हाट कम्स वेयर, बट आई डोंट थिंक सो कि अगर एक बार मैंने अरेंज कर दिया ना तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वी हैव 300 ए, राइट। हम बात कर रहे हैं कॉल्ड नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी। देखो बड़ी बहुत लॉजिकल पॉइंट है, सोच के देखना। आपने 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 जितने कॉल्स किए होंगे, राइट, ठीक है, और उनका कन्वर्जन, फाइनल कॉल मतलब लीड आई होगी कुछ, लीड के बाद मतलब यही है ना बेटा, मैं आपको बताता हूँ, देखना यहाँ पे एक बार ठीक से पॉइंट आप समझ लेना, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखना यहाँ पे यार, आपका क्या है कि आपने इतने कॉल्स तो किए, 300 ए कॉल्स तो आपने किए हैं,
और इतने कॉल्स आपके कन्वर्ट हुए हैं, तो कुछ तो मार्जिन रहा होगा ना, कुछ तो डिफरेंस रहा होगा जो आपको कॉल्स कन्वर्ट नहीं हुए हैं। मतलब थ्री, आप यहाँ पे देखो, आपने कॉल्स कितने किए हैं, आपको मैं फिर से करके बताता हूँ, रुकना 1 मिनट, 1 मिनट देखना। देखो, मान लो अगर एक ही केस में बात करें, तो एक का डाटा तो सारा गिवन है ना, एक का डाटा गिवन है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, यह तो आ गया 9600। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 24 से मल्टीप्लाई करो, 24 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, आ, कितना कितना है, थोड़ा बताना यार मुझे, जल्दी जल्दी, थोड़ा ना वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, नहीं तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। एक बार मैं कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, 2 मिनट रुकना। 32 है ना, इंटू, बस आपको समझाने के लिए, उतना हमें चाहिए भी नहीं यहाँ पे, बट थोड़ा समझा दूंगा मैं आपको तो सही हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी 7680, ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेना। एंड ये हो जाएगा 288 इंटू ए, सॉरी 24 है ना, दैट इज गोइंग टू बी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 288 इंटू 24 कितना हो जाएगा ये, 6912, राइट। अब यहाँ पे देखना यार, जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये कैलकुलेट का कोई मतलब नहीं था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे, कर लेते या कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया आपको। यहाँ पे देखना कि आपने 9600 कॉल्स किए हैं, बट आपका कॉल कन्वर्जन कितना हुआ है, 6912। तो ये जो नंबर ऑफ कॉल्स जो नहीं कन्वर्ट हुए हैं ना, दिस इज वॉट इट इज सेइंग इन विद द कंपनी सी, ठीक है। होप सो आपको बात ही समझ आ गई होगी। अगेन अगेन गाइस, जस्ट इसको समझाने के लिए ये पॉइंट मैंने मेंशन किया था, इसका कोई पर्पस था नहीं यहाँ पे बताने का, बट कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया, सो इट्स गुड फॉर यू कि आप उस चीजों को कर लोगे। ठीक है, चल आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, और क्या है आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास इसका डाटा, कि आपके पास है 300A, 300A इज दिस वन, ठीक है। आपने वैसे वैल्यू फाइंड कर ली है, 7200 है, 7200 लिख ही लेते हैं, 7200, ठीक है। माइनस क्या, माइनस में कितना लेके चलोगे, ठीक है, माइनस में दिस मच डाटा, तो डेट इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा, 260, 264, 264 AY, AY upon 100. This number of calls has not been received in case of C. ठीक है बेटा, this number of calls has not been received by, रुकना यार 1 मिनट, रुकना बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओह, हम्म, है, थोड़ा ये हो गया मेरे से गलती, ठीक है जी। सो दिस इज मच, दिस मच इज नॉट कॉल रिसीव्ड बाई इन केस ऑफ सी, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया, कॉल नॉट रिसीव्ड बाई सी इज हाउ मच लेस देन 4464, लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कॉल रिसीव्ड बाई कंपनी ए। कंपनी ए को कितना कॉल रिसीव्ड हुआ है, कंपनी ए को रिसीव्ड कॉल यही है ना, 288, लीड इनका ये था, मतलब नंबर ऑफ कॉल्स इतने किए थे, लीड इतना मिला, कन्वर्जन, फाइनल कन्वर्जन 288A विच इज 6912, राइट। इसको क्या होगा ये, तो दैट इज गोइंग टू बी, मुझे स्पेस लेना ही पड़ेगा यार, ये इसमें नहीं हो पाएगा, रुकना रुकना 2 मिनट रुकना यार, रुकना मेरे प्यारे बच्चों, रुक जाओ। हो जा भाई, पीछे है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इस पे ही थे ना हम लोग, तो एक रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ना मैं एक स्पेस ले लूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इतना डाटा आप ध्यान में रखना बस, बाकी चीजें तो हम बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है जी। चलो, ठीक है, बस इतना डाटा ध्यान में रखना कि हमारे पास क्या आया है, कि 7200 माइनस 264 AY अपॉन 100 इक्वल्स टू सी, ठीक है। अच्छा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको अरेज ही कर देता हूँ, अरेज करके फिर आपको फ्रेश समझाता हूँ कि कैसे कैसे चीजें चली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डाटा था, हम्म, हमारे पास डाटा है कि कॉल नॉट रिसीव्ड बाय सी, ठीक है, कॉल नॉट रिसीव्ड बाय सी। तो सी में कितना, 7200 तो कॉल इसने किया था, माइनस 264, कितना था,
क्या लिया था हमने पीछे यार, अरे भाई साहब, पीछे डाटा क्या था, 365, 360, हाँ, तो ये था ना 364 था ना, हाँ 364, 364 AX था, तो ए की वैल्यू तो 24 आ गई है हमारे पास, राइट। 24 इंटू वाई की वैल्यू तो नहीं मिली ना हमें, वाई की तो वैल्यू नहीं मिली है, हाँ वाई की वैल्यू नहीं मिली है, ठीक है, वाई की वैल्यू नहीं मिली है, अपॉन 100, राइट। ये आ जाता आपका यहाँ पे, तो ये इसको सॉल्व करते तो कितना हो जाता है यार ये, इससे अगर सॉल्व करें तो 7200 माइनस, अगर 24 को इसको मल्टीप्लाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 20 20 से कर दो, जीरो जीरो लगा कर ट्वाइस कर दो, और 264 को 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा कितना, 6336, ठीक है, y/100, ठीक है जी, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया कॉल नॉट रिसीव्ड। अब एक एक केस में क्या है, उस उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से पढ़ो ना, उन्होंने बोला क्या है कि जो सी के जो नॉट रिसीव्ड कॉल्स है ना, मतलब क्या, जो टोटल नंबर ऑफ कॉल नॉट रिसीव्ड बाय सी, ठीक है, तो ये तो आ गया इतना हमारे पास, ठीक है, इज 4464 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड बाय ए। अब जो ए का जो कॉल रिसीव्ड है ना, उसका उसमें ऐड कर दोगे आप, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही लॉजिकल सा पॉइंट है ये, कि इसमें अगर मैं क्या ऐड कर दूं, द नंबर कितना आया था, वो आया था 4464, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, लेस है ना, तो इसमें अगर ऐड कर दिया तो आ किसका गया, कॉल रिसीव्ड बाई, मतलब जो फाइनली था ना ए के द्वारा कितना कॉल रिसीव्ड हुआ है, दैट इज 6912। बस इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और आपके पास आ जाएगी y की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो बेटा, तो फाइनली y की वैल्यू आपके पास आती है 75। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अगेन इट्स अ वेरी इजी टास्क, आप कर सकते हो, ठीक है, इसको ट्राई करना सॉल्व करने की, और ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। गाइस गॉट द पॉइंट ना, ठीक है। अच्छा, हमने गलती क्या कर दी ना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, कि ये वाला जो पार्ट था ना, मतलब क्या था ये पार्ट, थोड़ा थोड़ा सा देखना, क्या हम गलतियां कहाँ पे, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है ना, उससे हमारा क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है। यहाँ पे देखना, हमारे पास था 7200 माइनस 264 AY/100, ये था, राइट। तो ये सिंप्लीफाई करोगे ना, ए की जगह पे तो 24 रख दोगे, राइट, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा इतना, माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके कितना किया था, 6336 y/100, देन प्लस होगा 4464 इक्वल्स टू 6912। थोड़ा ये मिस्टेक था हमारे एंड से, तो वो मैंने आपको रेक्टिफाई करके करेक्ट करके बता दिया, राइट। इसको सॉल्व कर लेना, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू इज गोइंग टू बी 75, और हमसे पूछा ही यही था कि y की वैल्यू कितनी होगी, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे, 75 मींस ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, राइट गाइस। Guys got the point ना। Again if you have any doubt you can tell me in the comment section, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पेज भी ले लिया, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, एंड एक बार आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए, यू कैन डू द क्वेश्चन वेरी इजीली। क्वेश्चन पे इस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया था कि जो कॉल नॉट रिसीव्ड है सी से, तो वो कितना कम है, 4464, किसके बराबर, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड फाइनली रिसीव्ड कन्वर्टेड बाई ए, और कन्वर्टेड बाई ए कितना था, हमने किया था 288 इंटू 24 कर दिया था, जो कि हमारे पास ये आ गया था, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गाइस, राइट। होप सो आपको समझ आ गई होंगी चीजें। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर सेकंड इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है ना, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉल नॉट रिसीव्ड बाई ए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉल, सुनना मेरी बात यार, बहुत ध्यान से सुनना, कॉल, टोटल नंबर ऑफ कॉल नॉट रिसीव्ड बाई ए, अच्छा वापस से, कॉल नॉट रिसीव्ड बाई ए है, एंड रिसीव्ड बाई बी इज 24, अच्छा, एंड 32 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, वही 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 वाली बात वापस से आ गई हमारे पास,
कि कॉल नॉट रिसीव्ड है, ठीक है। तो कॉल अगर नॉट रिसीव्ड है तो कौन सा डाटा आप पिक करोगे? कॉल नॉट रिसीव्ड है तो कौन सा डाटा आप पिक करोगे? जस्ट अ सेकेंड, चलो मुझे चेक करना पड़ता है बीच बीच में ना यार कि कोई चीज गड़बड़ तो नहीं है ना, तो फिर हाँ दिक्कत हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, चलो वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ कॉल नॉट रिसीव्ड बाय ए, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ना हमने जो डाटा लिया था वो हमने एज इट इज फाइंड कर लिया था। कितना लिए के करा था हमने? हमने लिया था 1000 ए, और सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली थी। होप सो अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप पिछले वाले पोर्शन पे जाके आप एक बार देख लेना क्या क्या चीजें थी, एंड यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन फाइंड व्हाट इज गिवन, राइट। तो आपको क्या बोला गया है? अच्छा, कॉल नॉट रिसीव्ड ए का मतलब क्या है? कॉल कितना किया गया था ए के द्वारा? दैट इज गोइंग टू बी 400 ए। इतने ही कॉल्स किए गए हैं, ये हमने एक्चुअली कैलकुलेट कर लिया है। हमने 1000 लिया था, 1000 से 40% इज गोइंग टू बी 400 ए, माइनस कितना था? दैट इज गोइंग टू बी 288 ए, राइट, इक्वल्स टू कितना दिया है? कॉल नॉट रिसीव्ड, दैट इज गोइंग टू बी टू, कितना दिया हुआ है? दैट इज गोइंग, अच्छा ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 112 ए, और इसकी वैल्यू दी हुई है 112 ए की वैल्यू दी हुई है, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? ये दी हुई ना, नॉट रिसीव्ड बाय ए एंड रिसीव्ड बाय बी, तो ये ए की वैल्यू है 224 है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, राइट। तो यहां से ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पे पुट ऑन करके आप फाइंड कर सकते हो कितने कॉल्स किए गए, कितने कॉल्स नहीं किए गए हैं, राइट। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ कॉल रिसीव्ड बाय बी, रिसीव्ड बाय बी यानी क्या? हमने क्या निकाला था? 3 एक्स, जो बीच में पार्ट था एक्स वाली वैल्यू थी, तो हमने ये निकाला था इनटू कितना था वो? कॉल रिसीव्ड, आपको ध्यान होना 4/5, 80% था ना, दैट इज गोइंग टू बी 4/5 इक्वल्स टू दैट इज गोइंग टू बी 432, राइट। यहां से फाइंड करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू इज गोइंग टू बी 90। आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ कॉल नॉट रिसीव्ड, तो यहां से आ गया 90, ठीक है। तो आपके पास था क्या? आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू इज गोइंग टू बी 90 ओनली, ठीक है। तो ऊपर वाला डाटा की जरूरत भी नहीं थी हमें, राइट, हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे, राइट। अच्छा, डाटा की जरूरत इसलिए पड़ती ना, ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती क्योंकि ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, देन हमारा जाके आंसर एक्स की वैल्यू, एक्स के टर्म्स में हमारा आंसर आ पाता, राइट गाइस, ठीक। चलो, last question of this particular DI set. Hope so you guys are enjoying the session, right? Again, आपकी कोई डाउट्स हैं, कोई समस्या है आपके साथ? समस्या इन द सेंस की लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, डू लेट अस नो। वी डेफिनेटली, आवर टीम डेफिनेटली विल गोइंग टू कांटेक्ट यू। अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक वीडियो, स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना, देन प्लीज डू लेट अस नो, वी डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। चलो, अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो, ये तो इजी क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लीड कॉल्स मेड बाय ए टू द नंबर ऑफ इनिशियल कॉल बाय बी, राइट। तो लीड कॉल कितनी थे? कितना था यार लीड कॉल? अगर आप देखो यहाँ पे तो लीड कॉल कितना है आपके पास ए के लिए? दैट इज गोइंग टू बी 320 ए, यही फाइंड किया था हमने। आप देख लेना एक बार लाइक बैक करके वीडियो को। और हमने इनिशियल कॉल, लीड कॉल बाय ए, लीड कॉल तो ए के लिए ये था, और बी के लिए कितना था? बी के लिए इनिशियल कॉल्स कितना था? 300 ए, राइट। यही किया था ना यार हमने। हम देखो यार, फिर से मैं बता देता हूँ, मान लो हमने लिया था 1000 ए, लिया था टोटल नंबर ऑफ कॉल्स, ए के केस में 40% था, दैट इज गोइंग टू बी 400 ए, दो की इनिशियल नंबर ऑफ कॉल्स किए थे इन्होंने। देन लीड कॉल्स कितने थे? 80%, 80% कितना आया था? 200 ए, 220 ए। फिर हमने बी के केस में भी यही किया था, बी के केस में 30% था आई थिंक सो,
30% था, आई डोंट रिमेंबर द डाटा एग्जैक्टली, तो हमने निकाला था दैट इज गोइंग टू बी 300A, राइट। तो ये इन दोनों का रेशियो पूछा है, ए विल बी गोइंग टू बी कैंसिल आउट। जब भी रेशियो फाइंड करते हैं रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली वी कैन डू द कैलकुलेशन। दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, दैट इज गोइंग टू बी 32:30। इसे सॉल्व करोगे 16:15, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, राइट। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन दिस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको सोल्यूशन कहीं भी नहीं मिल सकता है, राइट। वी प्रोवाइडिंग यू द सॉल्यूशंस, राइट। सो मेक श्योर to watch the videos, right? And if you are on a very first time on this particular channel, do like and subscribe the channel, guys, right? Again, we are going to make the quality content so that कि आपके इस प्रिपरेशन में हम छोटा सा हिस्सा रोल प्ले कर पाए, राइट। सो लाइक आई जस्ट टोल्ड यू कि हर एक वीडियो में एक सेट मैं डीआई का लेता हूं और उसी डीआई के एक सेट को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। होप सो गाइज यू हैव एंजॉयड द सेशन, राइट। Let's meet in the next session, all of you. Till then, thank you so much for watching this video, and do well in your like SBI PO mains exam. Till then, guys, thank you so much, and we're gonna meet in the next video. Okay, guys. So thank you so much.